Myself, Dr. Neha, and the topic for discussion is today's the lactate kinetics and its role in recovery. Can you see my screen? Please write in the chat box or please answer. Yes, ma'am. Yeah, it's okay. Yes, ma'am. Okay. See, first of all, as we know, there are three main energy systems in our body. First is our ATP-CP system, second our lactic acid system, and third is our aerobic system. First system, that is our ATP-CP system, that gives us the immediate source of energy and which provides us energy. It's a quick source of energy, but not lasting for a longer period. Mainly the less than 30 seconds, the work we are performing in the less than 30 seconds, this ATP-CP system is the major system which is providing us energy. Then the lactic acid system, next system, that is gives us energy also very quickly, but it lasts for more than this ATP-CP system, and this also causes the fatigue because it builds the metabolic waste, that is lactic acid. And third system is our aerobic system that provides us energy at a slower rate, but it I can say it's this energy sustained for a longer period, like long duration activities where the aerobic system takes place as a dominant role. All the three systems work together. तीनों system जो है एक साथ start होते हैं, but the domination of the energy system depends upon the sports or activity, which type of activity we are performing. So, as you see, and you can see in the picture, this is what is our ATP-CP system, which is lasts for 30 seconds. And if the activity is more than 30 seconds, this is our glycolysis system, where this is called the lactic acid system, where the lactic acid is formed or other metabolic acids are formed, which causes the fatigue in our body. And then there is an oxidative system. As we can see in the picture, all the three systems are start together, but depends upon the activity. These systems. I think slide is not changing, ma'am. Okay. It's okay now? Yes, ma'am. Now it is visible. I'm repeating the slide again. See, as in the picture, we can see this is the first is your ATP-CP system, which lasts for 30 seconds. Then if the activity is more than 30 seconds, the glycolysis system will come over. And if the activity is more than 60 seconds, the oxidative system, that is our aerobic system, where the major source of energy, you can say the oxygen from the outside is the dominating. So you can see, depending upon the activity or the duration of the activity, these systems are dominating, but all the three systems are स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पे तीनों सिस्टम जो है वो शुरू होते हैं, लेकिन हमारी गेम की एक्टिविटी की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम एनर्जी सिस्टम डोमिनेटिंग होगा. सपोज एक कोई भी एक्टिविटी है, इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, दिस इज लाइक एन एग्जांपल, हम इसको अगर हम समझने की कोशिश करें लाइक एनर्जी सिस्टम कैसे समझना है. So we have suppose the currency, we have the currency in our notes, right? So what is ATP-CP? ATP-CP is like a chiller we can use immediately. The second currency what we are having कि हमारा जो 10 rupees, 20, 30, 40 rupees का नोट है, that is our second currency, and third is हमारा big note 500, 200, 2000 note. So what we do actually in our normal life, we spend our money according to the cost of the object. अगर मेरे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो मैं बड़ा नोट नहीं निकालती. सेम इन द केस ऑफ आवर बॉडी, इफ द एक्टिविटी इज the cost of the activity is less, body will not spend the ये जो bigger हमारे energy systems है. So what happens actually, our chiller will be try to first spend our chiller. Same ATP-CP are the chiller. We are ready to use. These are the ready to use source of the energy. मुझे कुछ भी काम करना है, मुझे कुछ उठा के रखना है, तो I will use ATP-CP.
ठीक है, राइट। देन द इवेंट जो आपका काम है, सपोज जो भी आपका एक्टिविटी आप कर रहे हो उसकी कॉस्ट इस एटीपी सीपी जो आपके चिल्लर है उससे ज्यादा है, देन आप क्या करोगे, अपना 10 20 30 का नोट निकालोगे, जिसको आप कहाँ रखते हो, जिसको सपोज आप फ्रंट पॉकेट में रखते हो, चिल्लर आप रेडी टू यूज हैंड में रखते हो कि इसको मैंने सबसे पहले खर्चना है, देन यू यूज योर सेकंड जो आपका करेंसी है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 1 minute टू आप उसको फ्रंट पॉकेट से निकाल के यूज करेंगे, सेम एज इन आवर केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और लैक्टिक एसिड सिस्टम। नाउ आपने उसको खर्च कर दिया, वो भी आपका खत्म हो गया। नाउ व्हाट यू विल यूज, अब आप अपना अभी भी आपका जो कॉस्ट है उसका, आपका जो एक्टिविटी है दैट इज हाई, देन यू विल यूज योर थर्ड सिस्टम, दैट इज योर आपका जो बिग नोट है जो आपने पीछे बैक पॉकेट में रखा है, एंड दिस बिग नोट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द आपका जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज योर करेंसी, देन यू विल एबल टू यूटिलाइज दैट, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। आपका जो बड़ा नोट है वो आप क्या करेगा, आप उसको बैक पॉकेट से अपना वॉलेट खोल के निकालेंगे, दैट इज रिजर्व, तो आप उसको रिजर्वायर को खोल के उसमें से निकालेंगे, यूज करेंगे, तो इट टेक्स टाइम। पर अगर आपका इवेंट उससे ही पहले खत्म हो रहा है तो हम उस बड़े नोट को यूज नहीं कर रही हमारी बॉडी। सो सेम इज इन द केस ऑफ एनर्जी सिस्टम, it depends upon the duration of the activity, what with the body is which type of activity the body is going to do, depending upon that our body use that energy systems, and all these three systems ultimately convert the ready to use currency, that is ATP-CP, and the end product for the all these energy system is same, that is ATP-CP. Now when we do exercise, as we know, when we do any type of exercise, it is aerobic or anaerobic, we know we are using glucose and oxygen, and this oxygen, when we are doing this exercise, we are starting exercise, we are what this will convert into the carbon dioxide, our product is carbon dioxide and water. See, when the body needs glucose and oxygen for the respiration, during the breathing process our pulse rate gets higher side and our body demand of oxygen also increasing. जैसे जैसे हम एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, हमारा जो बॉडी का डिमांड है ऑक्सीजन का दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड विद दिस ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है दैट मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली, जो ये साथ के साथ हमारी बॉडी में रिमूव होना जरूरी है, अनलेस बिकॉज अगर ये रिमूव नहीं होगा इट विल कॉज फटीग इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फटीग कॉज करता है। एंड व्हाट इज फटीग, सिंपल लैंग्वेज, फटीग वी कैन से इट इज द इंटरेक्शन ऑफ एनी फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जो हमें लंबे समय तक काम करने से रोकता है, दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर which makes us unable to work for a longer period, and we can say secondly our inability to maintain the same power output, जिस पावर से मैं पहले खेल रही थी उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, माय पावर इज गोइंग डाउन, दैट इज कॉल्ड द फटीग, एंड दिस इज ड्यू, व्हाई दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन माय बॉडी, सो दिस कॉजेस द फटीग, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फटीग आता है। नाउ सी, fatigues are of two types, first your negative fatigue, then your positive fatigue. What is negative fatigue? If you can see in the picture, if the load, this is the training load and this is our recovery period, if the training load period is on the higher side and recovery is the lower side, means the period for the recovery is less, the performance will go down. This fatigue is called negative type of fatigue that lead to the chronic. If we do same type of trend in our workout, so it will leads to the chronic type of fatigue. We can say example, this is the overtraining or overuse of the muscles. But if the training load and the recovery period is same, this fatigue is called the positive type of fatigue, which is important for the increasing the performance, because if this after the sufficient time of recovery, our body will be go for the, you can say the muscles are recovered, there will be the adaptation of the training adaptation which gives you the readiness for the next performance.
So this is the positive type of fatigue. Now, what is the continuum of the training? For the continuum of the training, if you can see here, what if the person is over recovery, it means he is under the training. But if he is doing optimal training with the optimum recovery, the performance will increase. And if the recovery is what under recovery, then it means he's overreaching that training because he's not able to recover properly. Now, if the training is over, then it means he's under the serious recovery. Again, the performance is going down. So performance is directly related to what our optimum recovery with the optimum period of training. So training load and the performance and that optimal training are related. Now, what are the symptoms which shows the player is or the body is under fatigue? These are the common symptoms. As we know, these are the weakness in the body or the lack of energy or constant tiredness or the exhaustion, lack of the movement or difficulty in the concentration or making to complete the task or to start any activity. So these are the common symptoms of fatigue. Now, what are the physiological basis of this fatigue? There are two hypotheses of this fatigue. First is our depletion hypothesis, that is metabolic depletion. Depletion means something is deleting from our body, that is depletion. Some metabolites. Metabolites are what? Which are these are the actually substrate which are giving us energy, जिससे हमें energy मिल रही है. So depletion means उनका removal हो रहा है body से. Second hypothesis is accumulation. Accumulation means किसी मेटाबोलाइट का accumulate होना बॉडी के अंदर. So there are two major hypotheses in during this the process of fatigue. So first hypothesis, if we see, this is first hypothesis. When we are doing any type of activity, there is depletion of our CP and ATP. What are CP, ATP? As we know, these are the currency. These are our immediate source of energy. We are doing any activity. This currency is depleted from our energy sources. Then the activity is, if the cost of activity is on the higher side, तो हमारे glycogen stores भी खाली हो जाएंगे. Depletion of our glycogen stores will take place. उसके बाद अगर आपका glycogen store भी खाली हो गया, then depletion of your glucose. So these are the energy reservoirs which go on depletion depending upon the activity जो हम activity perform कर रहे हैं. So next hypothesis says accumulation. Accumulation of what? Accumulation means there is a production of waste materials that are the metabolic accumulation, and these are what? These are the mainly the lactic acid, then the hydrogen ions, then the phosphate or deprotonated phosphate. What are these? These are due to your what? These are due to your continuous physical activity, your waste material form in the body, and the removal of waste material is not as the production. So what will happen? These metabolites will accumulate in our body and which will reduce our performance, so cause the fatigue. But in the depletion hypothesis, because of depletion of energy sources, our performance was going decreases. हमारी performance down जा रही थी because energy sources खाली हो रहे थे और दूसरी तरफ से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहे थे जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी अगेन डाउन जा रही थी. सो बोथ आर द रीजंस व्हिच आर बोथ आर द हाइपोथेसिस. कोई भी हाइपोथेसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करेगा, फटीग कॉज करता है. सो our topic of concern is today's lactic acid. What is lactic acid? Lactic acid is, as we know, this is the waste material. As we say, this is a waste material, but this is a what? This is a metabolite which forms in our body and forms in when the glycolysis product. This is the product of anaerobic glycolysis. Actually, what happens? This is a product when there is a during the lactic acid system, when the oxygen, the demand oxygen is not according to the demand of the oxygen is on the higher side, but supply is not optimum. So this acid
start accumulating in the body. Lactic acid हमारी बॉडी में अभी रेस्टिंग कंडीशंस में भी है, बट इट इज नॉर्मल द बिलो रेंज. नॉर्मल द बिलो रेंज मीन्स जो हमारा नॉर्मल द सॉरी बिलो द नॉर्मल रेंज, बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसमें जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो जो लैक्टिक एसिड है वो बनता है और हम साथ के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये क्या है साथ के साथ ही रिमूव हो रहा है. लेकिन एज वी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी का डिमांड जो है वो बढ़ता है, ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, हमारा हार्ट जो है उसको कंपनसेट कर रहा है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है. लेकिन फिर भी क्या होगा, ये जो हमारी बॉडी का क्या है एक लिमिटिंग फैक्टर है इसका मैक्सिमम. जब इसका मैक्सिमम आएगा our heart and our respiratory system is not able to क्या fulfill the demand of the body, then what will happen, these metabolites will start accumulating in our body. हमारी बॉडी के अंदर ये क्या होगा, accumulate प्रोडक्शन जो जमा होना शुरू हो जाएगा. अदरवाइज इट वाज गोइंग टू रिमूव, अदरवाइज क्या हो रहा था, ये साथ के साथ रिमूव हो रहे थे जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या था, जो फटीग की कंडीशन जो हमारा सेकंड हाइपोथेसिस था वो फॉलो नहीं हो रहा था, साथ के साथ रिमूवल हो रहा था. अब क्या हो रहा है, कि स्टार्ट अकोमुलेटिंग. ड्यू टू दिस अकोमुलेशन क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर जब ये बन रहा है करता क्या है, इट एक्चुअली व्हाट इट डूज, अगर हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है तो वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, this lactic acid will convert into energy. ये हमें एनर्जी देता रहता है. This will convert this into the energy, and this will, if it is not converting into energy, it will start accumulating in our muscles, which leads up to the our muscular cramps or muscular pain or fatigue. These are the due to when it will happen, when we are on the higher intensity exercise. The exercise intensity is on the higher side. Now see, because of high intensity the demand of the body increases. हमारी बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उतनी ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं कर पाती जितनी जरूरत है. सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है that will start first that will produce in the muscles, then it will comes in your blood. When it comes in our blood it becomes the lactate. The blood this becomes the लैक्टेट. एक्चुअली क्या ये माना जाता था कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये जब ब्लड में आता है तो ये क्या करता है, ब्लड को एसिडिक बना देता है. पर नाउअडेज देयर इज अ रिसर्च कि ये क्या कहता है कि एनी जब भी ये लैक्टिक एसिड है जब ये क्या होगा ब्लड के अंदर आता है तो व्हाट इट डज एक्चुअली, ये क्या करता है ब्लड के एसिडोसिस को कम करने की कोशिश करता है. कम करने की कोशिश करता है तब तक एक लिमिट तक, क्योंकि क्या होता है जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक कब होता है, व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एचाइंस. बिकॉज क्या होता है जब हम हाई इंटेंसिटी पे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एचाइंस व्हिच एक्चुअली लीड्स टू द चेंज इन द पीएच ऑफ ब्लड. एंड व्हेन द पीएच ऑफ द ब्लड चेंजेस, जब ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, सी व्हाट विल हैपन, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि पीएच चेंज होगी ब्लड की, तो पीएच चेंज होने से ब्लड अब सेम वही चीज वही सॉल्वेंट नहीं रहा जो पहले था. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ वाटर, सिंपल प्लेन वाटर, एंड आई एम एडिंग एनी टाइप ऑफ acid in it, I am changing the pH of the water. What will happen now, the property of water is changed now. So if the property of water is changed from the simple water, plain water, same in the case of the same in the case of the blood, when the acidosis takes place due to H-ions, जो हमारे H-ions बने हैं उसकी वजह से, तो क्या होगा, हम हाई इंटेंसिटी पे सांस पूरा ले रहे हैं, इवन वी आर ब्रीदिंग, अपना मुंह खोल के भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन मेरे मसल्स तक पहुंच नहीं रही है. क्यों नहीं पहुंच रही है, ये उस लैक्टिक एसिड को रिमूव नहीं कर पा रही है. रीजन बिकॉज एचाइंस जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड की एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है
वो ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है। जब ये बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये हीमोग्लोबिन जो है इट इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। हमारे मसल्स तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है इन स्पाइट ऑफ आवर ब्रीदिंग रेट इज वेरी हाई। हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा होने के बाद भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हमारे वर्किंग मसल्स तक नहीं पहुंच रही। रीजन एसिडोसिस, एसिडिक नेचर ऑफ अवर ब्लड। नाउ अब क्या साइंस, अब जो हमारी लेटेस्ट स्टडी है वो क्या बोलती है कि ये जो लैक्टिक एसिड है व्हाट इट डज, जब ये हमारे क्या आता है ब्लड में आना शुरू होता है, देखिए मसल्स में बन रहा है और ये कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है 2-3 से 4 मिनट, 3rd to 4th मिनट तक ये ब्लड में आना शुरू होता है। हम एकदम से नहीं थकते, हम धीरे धीरे थकते हैं। और जब ये ब्लड में आता है तब व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये क्या करता है, अब इट स्टार्ट्स द, जो हमारा एसिडिक इफेक्ट है वो क्या करता है, उसको रिटार्ड करने के, उसको कम करने की कोशिश करता है। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आज आप क्या कहती है लेटेस्ट स्टडीज क्या कहती है कि ये जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है, अगर हम इसके ऊपर इस स्टेज पे जब हमारा लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और ये लैक्टिक एसिड जब ब्लड में आ जाता है, इस स्टेज पे जब वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज जब हम उस पर काम करेंगे तो क्या होगा, आवर बॉडी चेंजेस, आवर देयर विल बी द अडैप्टेशन इन आवर बॉडी। सी व्हाट टाइप ऑफ अडैप्टेशन इन आवर बॉडी, what happens when there will be the higher, there will be the high resistance, or we can say the sudden change in lactic acid concentration. See what happens actually when we are doing work, हम कोई भी काम कर रहे हैं, धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, सेम हार्ट रेट बढ़ रहा है, सेम ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, उसी तरह से लैक्टिक एसिड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट देयर विल बी अ स्टेज, देयर विल बी अ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज जहां पर देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, अचानक से बढ़ना लग जाएगा वो, दैट सडन इंक्रीज, वो एक्सरसाइज का इंटेंसिटी, उस टाइम को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड मीनिंग होता है दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, जिससे पहले और जिसके बाद में कुछ और है, उससे पहले कुछ और है, उसके बाद में कुछ और है। थ्रेशोल्ड का मतलब है लाइक इफ आई से कि थ्रेशोल्ड से एक पॉइंट पहले अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उससे वो कम हो रहा है, और थ्रेशोल्ड के एक पॉइंट ज्यादा तो स्टेज इज टोटली डिफरेंट। अगर हम इसका एग्जांपल लें कि सपोज मैं क्या करती हूँ, आई एम मैं पानी को पुटिंग वाटर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर टू मेक द आइस, मैंने क्या किया, पानी को फ्रीजर में रखा आइस जमा बनाने के लिए, देन व्हाट विल सी there must be a point, there must be a point of the in the refrigerator, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन हुआ होगा जिस पर वो क्या होगा, क्या होगा ना, वो वाटर होगा इन द लिक्विड स्टेट और नॉट दैट विल बी इन द सॉलिड स्टेट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन पॉइंट। इफ आई इंक्रीज, just increase the temperature, that will convert into the ice. If I decrease the temperature, that leads to the bring the water in the liquid state. So this point is called the transition point, हम उसे बोलते हैं transition point. So lactic threshold क्या है, same threshold means उस वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज जब आपका क्या होगा, जरा सा भी आप एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे योर बॉडी विल शिफ्ट टू द एनारोबिक, और जरा सा भी आप कम करेंगे तो बॉडी विल शिफ्ट टू द एरोबिक। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम ज्यादा करने से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है टोटली शिफ्ट हो रहा है। तो नाउअडेज हमारी रिसर्च क्या कहती है, ट्रेनिंग क्या कहती है, कोचेस क्या मानते हैं कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी पे बार बार वर्कआउट करते हैं, सो आवर बॉडी, व्हाट आवर बॉडी स्टार्ट चेंजिंग, हमारी बॉडी क्या करती है, उस ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, मैक्सिमल ऑक्सीजन जो हमारा कंजम्पशन है, दैट इज आवर VO2 मैक्स है, उसको क्या करती है, उसको यूटिलाइज करके उस लैक्टिक एसिड को रिमूव, उसका जो अकोमोलेशन है उसको डिले करने की कोशिश करती है, सो दैट जो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा था अब वो क्या हो, 1 मिनट या 2 मिनट डिले हो जाए। दैट विल लीड्स टू योर बॉडी इन मोर इन द एरोबिक जोन, आपकी बॉडी पहले से ज्यादा एरोबिक जोन में आ जाएगी। ड्यू टू व्हाई, सो बिकॉज ऑफ द delayed production of the lactic acid,
And why it will happen? It will happen when we are working on this threshold level again and again. Our body will, we will work out again and again on the threshold level. बार बार जब हम इसे करेंगे तब करने से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर देयर विल बी अ चेंज. आवर बॉडी विल यूज दिस VO2 max, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको हमारी बॉडी क्या करते लेकर, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर इस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो अक्यूमुलेशन है उसको डिले करने की कोशिश करेगी. सो पहले जो था कि ओनली VO2 max इज द प्रेडिक्टिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस, और नाउअडेज ये जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड लेवल है कि कब हमारी बॉडी में सडन राइज होता है लैक्टिक एसिड बनने का, अब ये दोनों फैक्टर्स को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं. देन वी व्हाट वी आर डूइंग, हम बोल रहे हैं कि वी हैव nowadays two predicting factor of the performance. सिर्फ VO2 max नहीं, उसके साथ साथ आपका लैक्टिक थ्रेशोल्ड कब आ रहा है, एंड दिस लैक्टिक थ्रेशोल्ड गिव्स यू द, जितना देर से आएगा उतना ज्यादा आपका जो एंड्योरेंस परफॉर्मेंस है वो जो है बढ़ेगा. सो हमारा जो ये थ्रेशोल्ड है जैसे मैंने आपको बताया, this is what, this is the intensity of that exercise where there is a sudden change or abrupt change. धीरे धीरे नॉर्मल चल रहा था and sudden change in your lactic acid production. आपका जो blood lactic level है वो अचानक से बढ़ गया. And I, as I told you, it takes time from the muscles to the blood. blood में आने में इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं. उस 3 से 4 मिनट में अगर आप उस इंटेंसिटी पे, अभी इंटेंसिटी हमें कैसे पता चलेगी कि कब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, सो वी हैव टू गो फॉर सर्टेन टेस्ट, और वी व्हाट वी कैन डू ड्यू टू द हार्ट रेट मॉनिटरिंग कि कब हमारा जो प्लेयर है कौन सी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज पे उसका हार्ट रेट जो है, उसका हार्ट रेट किस इंटेंसिटी पे उसका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है एकदम से हाई हो रहा है. अगर हम उसको क्या करेंगे, जब हम ट्रेनिंग कराएंगे प्लेयर को उसी हार्ट रेट जोन में रखेंगे और डे बाय डे वो उसी पे ट्रेनिंग करेगा, तो देयर विल बी द चेंज इन आवर द लैक्टिक एसिड accumulation in the body. So this is called the lactic training at the lactic threshold level, and this is the very important because क्यों, because इस टाइम पे जो हमारी बॉडी है क्या होती है, मेनली ऑन द, जैसे जैसे बिकॉज हमारा इंटेंसिटी बढ़ रही है बॉडी फास्ट, तो बॉडी क्या है, मसल्स क्या है फास्ट, जो हमारी एक्टिविटीज है दैट आर द फास्ट इंटेंसिटी और हायर साइड पे है. बट दिस इज, जब आप इसको बार बार करोगे इट विल लीड्स टू व्हाट, इट विल लीड्स टू इंक्रीज योर एरोबिक टाइप. क्यों एरोबिक टाइप कैसे करेगा, बिकॉज इट विल क्रिएट extra proteins that helps your body that convert your lactic acid to the energy. हमारी बॉडी क्या करेगी, ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, एंड दिस एनर्जी विल बी विच टाइप ऑफ, आपको क्या मिलेगा इसमें, आप यू विल परफॉर्म एट द हाई स्पीड, आप हाई स्पीड पर ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड लैक्टेट एट द हाई स्पीड. अगर हम देखें इस पिक्चर में, इफ यू कैन सी देयर इज अ इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग. देखिए जो हमारा, दिस इज द स्पीड एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड लैक्टेट. व्हेन द दिस इज द ब्लड लैक्टेट, ना काट रही है 100 कितने रे, बैठो आ जाओ. और जी आप जैसे देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जब हम ट्रेनिंग हम कर रहे थे, बिफोर द ट्रेनिंग व्हाट हैपेंस एक्चुअली at this level when the speed was between the 14 to 15, lactic acid production was below 2. As the speed is going above, जैसे जैसे speed बढ़ रही है lactic acid production भी बढ़ रहा है. When we are undergo this training, lactic threshold training, what will happen, lactic acid formation will be at the same speed is same, but the production will be less lactic acid is production is less, means it means your body is in the more in the aerobic zone as compared to earlier. जब ट्रेनिंग हमने नहीं की थी तब से सेम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, तो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज लेस एक्चुअली, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी जो है ज्यादा एरोबिक जोन में रहेगी. दैट्स लीड, जो आपका क्या होगा, जिससे आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है
प्रोसेस, इसका जो हमारा सीधा जो रिलेशन है दैट ऑल्सो विल शो योर रिकवरी प्रोसेस, जिसमें मेन हमारे पास क्या था, मोटिव क्या था, जो हमने बताया था कि आपका जो मेन हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ा था कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डिप्लीशन जिसमें एनर्जी सोर्सेस जा रहे थे, दूसरा जो आपका अकोमुलेशन वाला था, जो लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन है वो डिले होगा, जिससे आपको हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट आपका जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग पे हमारी बॉडी दैट विल बी अ aerobic capacity will be increased and your conditioning of your muscles or your enzymes will also increase. And secondly जो हमारे aerobic that is our mitochondrial enzymes जो क्या कर रहे हैं, aerobic type of conversion of what glucose from the and with the use of oxygen हमारी energy production कर रहे हैं, that will be increased. Then your strengthening will leads to the hypertrophy of your type 1 muscle fiber. अब हमारे because we are on the higher intensity there will be the recruitment of our fast twitch muscle fiber and slow twitch. The efficiency of both muscle fiber will increase. So both muscle fiber will increase how? First aerobic is also increasing of oxidative. Secondly, because at the high intensity our body use our fast twitch muscle fiber more. So efficiency of both type of muscle fiber will increase. Then muscle fiber recruitment, our body will recruit more the recruitment of more muscle fiber at the higher intensity because of reason, because just to maintain जो हमारी intensity है उसे maintain करने के लिए. Now there is what, there is a conversion of type B to type A muscle fiber. That is what it means, because this is a temporary change. हमारा जो मसल फाइबर है उसकी जो चेंज टेम्परेरी चेंज होगा ड्यू टू द दिस लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग, सो दैट आवर फास्ट ट्विच मसल फाइबर temporarily act as a slow twitch muscle fiber to increase our aerobic type of activity, to increase our aerobic zone of our body. With this our stroke volume and the cardiac output will also increase, but not the short, we need a long-term training at the lactate threshold level and efficiency of our aerobic metabolism because there is a आपका जो lactate threshold आ रहा है ये एकदम से आपका high intensity activity में नहीं आ रहा है, aerobic type में आ रहा है, but this is leads to your efficiency of your aerobic metabolism and your storage capacity also, because क्या हो रहा है, ये lactic acid जो है it will convert actually into क्या करेगा, आपके जो energy sources है उनको भी बढ़ाएगा. कैसे? This threshold training कैसे? Because your muscles will be able to store more glycogen because we have to perform activity at the higher intensity. High intensity में भी workout करना है और लंबे समय तक भी करना है, and it will increase the muscle capillary density also. Muscle capillary density means there will be the more blood flow to your working muscles so that they will be getting enough oxygen, so that there will be the enough oxygen and they will perform the for a longer period, and also increases the blood plasma volume. आपके जो blood का जो plasma volume है that will all the parameters actually increasing our what, increasing our endurance, our stamina for this is sustaining our this is aerobic zone, so that हमारी जो performance है उसमें फर्क पड़ जाए. Mainly जो हमारा like cycling है, long distance running है, जितना भी हमारा क्या है लॉन्ग जो ड्यूरेशन एक्टिविटी जिसका ज्यादा है वहीं पर हम लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग का जो है उसको हम यूज में लाते हैं. ओनली यही नहीं है कि हमारे पास कि हम इसको बार बार यही सोचे कि लैक्टिक एसिड जब जमा हो गया बॉडी के अंदर तो फटीग आएगा, नहीं. लेकिन हम थर्ड क्या है, अब हम इसको कैसे चेक कर रहे हैं, वी हैव मेनी मेथड्स. हमारे पास काफी तरीके, जैसे कि हम हार्ट रेट से भी लैक्टिक थ्रेशोल्ड करते हैं, बट द एक्यूरेट इज हम क्या करते हैं, ब्लड लैक्टिक टेस्टिंग करते हैं. ब्लड लैक्टिक टेस्टिंग, बिकॉज लैक्टिक जो है जब ये ब्लड में आया तभी ये क्या बना, एसिड से लैक्टेट बना. सो आई एम टेकिंग, वी हैव टू टेक द सैंपल फ्रॉम द ब्लड.
ब्लड सैंपल लेकर हम क्या करते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस, देयर आर सो मेनी पोर्टेबल डिवाइसेस जस्ट लाइक ग्लूकोमीटर, जैसे हमारा ग्लूकोमीटर होता है उसी तरह से क्या होता है लैक्टेट एनालाइजर, जो पोर्टेबल डिवाइसेस है दैट आर अवेलेबल, जिससे क्या है हम क्या निकाल सकते हैं ब्लड का पहले बिफोर द एक्सरसाइज करने से पहले हम सैंपल लेते हैं, उसके बाद जब हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, एंड व्हेन वी आफ्टर द एक्सरसाइज हम कब सैंपल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि 3 से 4 मिनट लगता है ब्लड में आने के लिए, सो वी हैव टू टेक सैंपल आफ्टर द थर्ड मिनट कोई भी एक्सरसाइज हमारी जो हो गई है, जब वो पीक पे है, जब वो खत्म किया आपने, उसका 3 से 4 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं लैक्टिक एसिड जो है सैंपल लेते हैं, क्योंकि दैट विल बी द पीक वैल्यू, वो क्या होगा प्लेयर का पीक वैल्यू होगा, जो क्या करेगा, जो हमें उसका बताएगा कि इस प्लेयर के अंदर इतना लैक्टिक एसिड बना है। नाउ दिस लैक्टिक एसिड ये जो हमारा बना है, देन वी विल सी द रिकवरी पीरियड, 3rd मिनट रिकवरी, देन 5th मिनट रिकवरी, कि इसका रिमूवल कितना फास्ट है। सी हार्ट रेट रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, 2 से 3 मिनट में हार्ट रेट रिकवर, बॉडी रिकवर्स टू हार्ट रेट, बट लैक्टेट रिमूवल्स टेक्स प्लेस टाइम, इट टेक्स टाइम, बट कितना टाइम इट डिपेंड्स कौन सा एक्टिविटी हमने करा है, लॉन्ग ड्यूरेशन और दिस इज यू कैन से हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी और स्लो, जिस टाइप का हमारा एक्टिविटी होगा उसी तरह से हमारा जो है क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का जो रिमूवल है दैट विल टेक्स प्लेस। सो रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना जल्दी, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर VO2 max, जितना VO2 max ज्यादा होगा उतना ज्यादा ड्यूरिंग दिस रिकवरी पीरियड हम रिकवरी पीरियड में ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे, और जितना ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेने की कैपेसिटी होगी उतनी जल्दी ये लैक्टिक एसिड रिमूवल विल टेक प्लेस, एंड ये जो रिमूवल जल्दी होगा उतना जल्दी जो हमारे मसल्स है वो जो क्रैम्पिंग जो है अभी टाइट हो जाते हैं दैट विल बी गेट लूजनिंग अगेन, वो फिर से प्री एक्सरसाइज स्टेट में आएंगे। सो जो हमारी प्रोसेस है दैट इज द योर रिकवरी प्रोसेस, ये इसके अंदर एक्चुअली रिकवरी जो प्रोसेस है उसका मतलब ये होता है कि बॉडी को प्री एक्सरसाइज स्टेट में लेके आना, वापस जहाँ से हम शुरू हुए थे वापस लेके आना, और शुरू हम कहाँ से हुए थे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लाइक वी हैव हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ा था, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ा था, हमारे एनर्जी स्टोर्स जो सारे सभी के स्टोर्स खाली हो गए थे वो सभी स्टोर्स भी दोबारा से वापस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो भी जो हमारी बॉडी के अंदर बना है वो भी वापस रिमूव होना है, देन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी जो है हमारी कंप्लीट होती है। सो प्रोसेस ऑफ रिकवरी तब कंप्लीट हुई, सो जो ये रिकवरी प्रोसेस है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट टेक्स प्लेस एक्चुअली, ठीक है हम इसको टू फेजेस में बांटते हैं। फर्स्ट फेज जो है मैं मेरी स्लाइड शेयर कर दूंगी, see what are the two phases of recovery. First of all there is a word epoch. What is epoch? Epoch क्या है, जो epoch is what, जब हम रिकवर करते हैं हमारी बॉडी, जब हम कोई भी एक्टिविटी खत्म हुई उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, कभी हम मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, कभी किस तरह से, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन हेल्प करती है किसके लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, पहले हम उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीजन डेट भी बोलते थे, फिर हम उसको बोलते थे इपॉक। इपॉक्स मतलब एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, एक्सेस वॉल्यूम, क्यों हम ऑक्सीजन एक्सेस ले रहे हैं, हमने एक्टिविटी तो खत्म कर दिया उसके बाद भी मैं ज्यादा ऑक्सीजन ले रही हूँ, उसकी वजह क्या है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन, जब हमने कोई भी काम शुरू किया था हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए हमारे मसल्स प्रिपेयर नहीं होते, तो वो क्या करती है, हमारी मसल्स वो ऑक्सीजन को अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर उस काम को कर देती है। नाउ इस टाइम पे ये ऑक्सीजन रिकवरी के टाइम पे ये ऑक्सीजन क्या करेगी, मेरे जितने भी स्टोर्स खाली हुए हैं दैट वाज द डिप्लीशन स्टोर, जो खाली हुए थे उसको भरेगी, और उसके बाद क्या करेगी, जो हमारे जितना भी लैक्टिक एसिड जो बॉडी के अंदर बना है उसको रिमूव करेगी। सो अगर हम देखें
कि हमारे पास कौन कौन से दो फेजेस है। एक फेज है रिकवरी का जिसको हम बोलते हैं फास्ट फेज ऑफ रिकवरी एंड सेकंड इज अवर स्लो फेज ऑफ रिकवरी। फास्ट फेज कौन सा है, देखिए ये हमने स्टार्ट करी रेस्ट से, बॉडी स्टार्ट करी, ये हमारा जो क्या था हमारी परफॉर्मेंस हुई। नाउ जहां पर हमने परफॉर्मेंस खत्म करी दिस स्टेज पर, अब ये ऑक्सीजन सीधा ऐसे डाउन आना चाहिए था, बट धीरे 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 करके मेरी डिमांड जो है वो कम हो रही है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन में क्यों ले रही हूँ बॉडी के अंदर, बिकॉज एक तो फर्स्ट इसका काम क्या है, जो जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरी बॉडी ने क्या किया था, माय बॉडी वाज अंडर द डेफिशिएंट। जो डेफिशिएंट मैंने क्या किया था, उस डेफिशिएंट मेरी बॉडी तैयार नहीं थी, सो बॉडी हैज अडेप्टेड, थोड़ा सा इधर उधर से उधार लेके उस एक्टिविटी को कर दिया। तो इसको फुलफिल करना है, दिस इज दिस रिकवरी ऑक्सीजन। सेकंड, दिस इज जो मेरी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बना है। सो ये जो मेरा ये फास्ट फेज है ये रिकवरी का, जो ये जल्दी जल्दी डाउन आ रहा है, इसको मैं बोलती हूँ अलैक्ट कंपोनेंट। अलैक्ट मींस, अलैक्ट मतलब नॉट रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड। इस फेज ऑफ रिकवरी में लैक्टिक एसिड रिमूवल नहीं हो रहा है। जो ऑक्सीजन में ले रही हूँ वो क्यों ले रही हूँ, बिकॉज बॉडी को प्री एक्सरसाइज स्टेट में लेके आना है, वापस जहां से शुरू हुई थी वहां पर लेके आना है। जो मेरे स्टोर्स ऑक्सीजन में खाली हो गए हैं, जो मेरा मायोग्लोबिन स्टोर्स खाली हो गए हैं, उसको फिर से फुलफिल करना है। मेरे एटीपी सीपी स्टोर जो खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन जाएगी तो एटीपी सीपी बनेंगे, दैट स्टोर विल बी फुलफिल अगेन। और ये कितने 3 मिनट के अंदर ये फेज खत्म हो जाती है। लेकिन जो मेरा स्लो फेज है, सेकंड फेज, दैट इज माय स्लो फेज ऑफ रिकवरी, ये वाला जो फेज है, इस फेज में लैक्टिक एसिड रिमूवल होता है। इतना जल्दी नहीं होता है, इस फेज में देना शुरू होगा। इसीलिए जब मैंने आपको बताया कि हमारा जब जब भी कोई एक्सरसाइज होगा, उसकी जब हम क्या करेंगे, जब हम रिमूवल देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी पीक एक्सरसाइज कितना, पीक लैक्टेट कितना गया, उसके बाद रिमूवल स्टार्ट होगा। सो क्या होगा, जब हमारा फास्ट कंपोनेंट हो जाएगा तो बॉडी एंटर करती है स्लो फेज में, तब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब भी ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, एक तो आपके जो बॉडी क्या था, आपके टेम्परेचर को अगेन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द आपकी जो एक्टिविटी अगर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, वेंटिलेशन प्रोसेस राइज होती है। और थर्ड जो है आपका जो लैक्टिक एसिड जो बना है वो उसका रिमूवल करना है। इसीलिए इस फेज को लैक्टिक एसिड कंपोनेंट कहा जाता है, इस फेज को अलैक्ट फेज कहा जाता है। अलैक्ट मींस नॉट रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड एंड दिस टेक्स टाइम। टाइम मींस कितना टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या था। समटाइम्स इट टेक्स 24 आवर्स और 36 आवर्स टू रिमूवल ऑफ द लैक्टेट। इसीलिए जो इवेंट्स हैं, जो हाई इंटेंसिटी इवेंट्स है, सपोज वेट लिफ्टिंग या कुछ है जिसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, वो जो आप देखेंगे, वो जो इनके जब हम कंपटीशन रखने जाते हैं, दैट नॉट ऑन द सेम डे, बिकॉज दे गिव टाइम टू रिमूवल ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। सो उसमें क्या है, ऑल्टरनेट डेज पे रखा जाता है या एक दिन छोड़ के कंसेक्यूटिव डेट, नॉट ऑन द सेम डेज, because the lactic acid production is higher side and removal will be also takes the same time, उसको उतना ही क्या है टाइम चाहिए रिमूवल के लिए, so that body again become come in the pre-exercise state and again able to take the load. So this is all about the lactic acid. Any questions, please? Ma'am, how much time does it take for lactic acid removal? You said the time. Time, see, it depends upon the activity. Sometimes it takes 4 hours, 8 hours, and adaptation of the player. And second, adaptation means your cardiorespiratory fitness, VO2 max level. If the VO2 max level is high, recovery will be on the faster side. But if the VO2 max is less, means the player is less, he is having the less aerobic fitness, so it takes time to recover. Secondly, आपका जो टाइप ऑफ रिकवरी, किस तरह की आप रिकवरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहे हैं। सपोज यू आर टेकिंग सम स्ट्रैटेजी लाइक मसाज एंड सोना बाथ, स्टीम बाथ, तो इससे क्या है लैक्टिक एसिड रिमूवल जो है फास्ट होता है, राइट। उसके बाद आप एक्टिव रिकवरी में जाते हैं तो लैक्टिक एसिड रिमूवल और फास्ट होता है। लेकिन फिर भी इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि कई गेम्स ऐसी भी हैं
जिसमें हमें 24 आवर्स भी लगते हैं टू बिकम जो हमारा लैक्टिक एसिड नॉर्मल आने के लिए, इतना जल्दी नहीं आता है। Okay, ma'am. Thank you. And diet also helpful for removing lactic acid. Which type of diet we take? Any question, please? Ma'am, Yes. diet also helpful for removing lactic acid. See, diet will also remove as we say जो हमारे रिकवरी फूड्स होते हैं, जो फूड वी आर टेकिंग आफ्टर द यू से Any specific nutrition or any specific vitamin minerals helpful for removing? vitamin B is helpful actually. Okay. Vitamin B is very much helpful in removing the lactic acid production and your potassium rich diet. That is why after the event or we take banana, that helps in actually removal of lactic acid from the muscles. Thank you, ma'am. That foods which are that rich in potassium, fatty acid, vitamin B. What is the difference between the lactic acid for trained and untrained people? Okay. Sorry, please repeat your question. Lactic acid deposition rate for trained and untrained athletes. The difference I need. Lactic acid production से it depends upon जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड्स अपॉन योर लेवल. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इज मोर, बहुत ज्यादा होता है, बट इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन दे able to tolerate, their body is able to tolerate that lactic acid. Production भी high rate पे होगा और their body is able to tolerate that lactic acid without getting fatigue. This is called lactic tolerance capacity. Capacity of the player to sustain, they are able to sustain that much lactic acid. Because अगर ये lactic acid बनेगा नहीं, हम बोले कि ये बने ही नहीं, तो एक तो होता है कि ये बने थोड़ा सा लेट बने, दूसरा अगर ये क्या बने, इसको अगर बॉडी क्या हो, इसको हमारी बॉडी टॉलरेट करना अडेप्ट हो जाएगा, सो दैट आल्सो इंक्रीज अवर ये जो हमारा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है. जितना भी आपका लेट लैक्टिक एसिड बन रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग योर स्टेमिना, योर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस. अगर आपका जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी आपका प्लेयर का बढ़ रहा है, तो उससे क्या बढ़ रहा है, द प्लेयर द पावर, द फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो है आपके, उसमें एडेप्टेशन ज्यादा आ रहा है. आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है पर आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसको आपने गिव अप नहीं किया, यू आर एबल टू टॉलरेट. Excuse me, ma'am. I have two questions to ask. Yes, First is that you said the heart rate which has to be controlled to monitor or to for the recovery phase of the lactic acid. yes. See, देखिए आप क्या है, जैसे ट्रेनिंग के दौरान डेली वी कैन नॉट डू लैक्टिक एसिड टेस्टिंग. क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर का लैक्टिक एसिड टेस्ट करेंगे, बट वी विल सी द लैक्टिक रिस्पांस ऑफ द प्लेयर. जैसे कि मैंने उसको क्या किया, हमारे पास जो लैब है, हम क्या करते हैं, उस पे स्टेशनरी बाइक पे वी विल सी कि उसका लैक्टिक एसिड कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे बना, देन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कैसे देयर विल बी अ सडन चेंज इन द लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन. दैट चेंज आई विल नोटिस कि उसका जो लैक्टिक एसिड चेंज हुआ है वो किस हार्ट रेट जोन में हुआ है, उसका हार्ट रेट कितना था. वो हार्ट रेट जोन जो है, अगर मैं कोच को दूंगी तो कोच क्या करेगा, उसे हार्ट रेट ट्रेनिंग जोन में उसको वर्कआउट कराएगा. दैट इज व्हाट, दैट इज हमारे पास एक इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज निकल आई. वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज कोच मेंटेन करेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. Then after some time they will again go for the testing. There will be, you will see if the player is doing that working on this that intensity, this there will be the effect, this there will be delay in the lactic acid production. वो जो intensity है, the body will be adapt, उस lactic acid को tolerate करना सीख गई है, उसके बाद delay हो जाएगा. Then again we will go undergo the testing, again I will give the this LT value, this lactic threshold value to the coach. So this there the heart rate plays role to know the intensity of the exercise when this heart rate is suddenly increases.
एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तो क्या जो लैक्टिक एसिड बॉडी में बनता है वो ब्लड ग्रुप को भी उसके अकॉर्डिंग में बनता है? ब्लड ग्रुप से फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड का ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ब्लड ग्रुप से And ma'am, what about the HB level? व्हाट अबाउट The HB level. Hemoglobin. व्हिच लेवल? Hemoglobin HB level. level is she was- Hemoglobin level she is asking for. Hemoglobin level. हीमोग्लोबिन लेवल Yes, ma'am. इनका पूछने का मतलब है मैम कि अगर किसी हाई है किसी तो का क्या होगा? Naturally, the player is having high level of hemoglobins. This production of lactic acid will be delayed because the oxygen delivery is taking place. Oxygen का delivery fast हो रहा है, जितना required है fast recovery हो रहा है. So what will happen? There is an advantage player के पास क्या है? Hemoglobin level ज़्यादा है तो उसका endurance zone वो already endurance zone में ज़्यादा है. As we compare जिसका hemoglobin number कम है. Okay. मैम ये जो लैक्टिक Thank you, एसिड का जो लैक्टिक एसिड होता है इसका WBC और RBC पे कोई फर्क पड़ता है? आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा आप ऊंची जो हमारे मैं कह रहा हूँ कि जो हम वर्कआउट करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमारा लैक्टिक एसिड बनता है तो उसमें कुछ जैसे WBC और RBC होता है बॉडी के अंदर, उसका भी कोई इफेक्ट आता है इसके ऊपर? इसका क्योंकि सबकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स का उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऊपर नीचे होता है? रेड ब्लड सेल देखिए, जब आप एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स तो बढ़ ही रहे हैं ना आपकी बॉडी में. रेड ब्लड सेल्स आपकी जब एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज व्हाट नहीं, आवर मैं बॉडी एक्चुअली मैम मैं बात कर रहा हूँ कि कईयों को जेनेटिकली होता है, किसी में RBC ज्यादा होता है, किसी में WBC ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ मैं जो आपको लैक्टिक एसिड बिल्कुल बॉडी सुन ही नहीं पा रही हूँ. कोई और सुन रहा है तो इनका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. मैम मैं ये कह रहा हूँ कि आप आवाज आ रही है मेरी आप? अब आ रही है. तो मैम ये कह रहा हूँ कि जब जो हम जेनेटिकली RBC और WBC होता है बॉडी के अंदर, तो ये लैक्टिक एसिड बनता है उसमें भी कुछ होता है ऐसा कि जिसका WBC ज्यादा उसमें कम बनता है, किसी में RBC ज्यादा उसका ज्यादा बनता है, ऐसा भी कुछ होता है इसका? देखिए WBC का RBC से नहीं, WBC आर फॉर द इम्यूनिटी पर्पस. ठीक है, आपकी Okay. बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए डिफेंस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं. आरबीसीस आपके ऑक्सीजन जो आपके आरबीसीस जो क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में, जो हमारा ऑक्सीजन जो मेन जो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. सो अगर बॉडी के अंदर आरबीसीस ज्यादा है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा है, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कम होगा. जो मसल्स हमारी मसल्स के अंदर, सपोज मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेट विच मसल फाइबर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, मेरे आरबीसीस का नंबर ज्यादा होगा. आरबीसीस का नंबर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, लैक्टिक एसिड थोड़ा लेट बनेगा, एंड्योरेंस इवेंट्स ज्यादा यूजफुल रहेंगे. थैंक यू मैम. Excuse me, ma'am.